صورتحال ٹھیک نہیں ملکہ. معلوم ہے سفر کی وجہ سے اخراجات میں دشواری پیش آ رہی ہے. تنخواہیں بھی مہینوں سے ادا نہیں کی گئی ہیں. ہمیں جلد از جلد اس کا مناسب حل ڈھونڈنا ہوگا کیونکہ سفر بہت طویل ہوگا. میں اس مسئلے پر بذات خود توجہ دے رہی ہوں عفیفہ خاتون. جلد از جلد اس کا حل ڈھونڈ لوں گی میں. اوہو، تم سب کو میری بات پر یقین نہیں ہے کیا؟ لشکر سفر پر گیا ہے اور تم سب کیسی بے شرمی سے اشرفیہ مانگ رہی ہو؟ کیا اپنا حق مانگنا جرم ہے آغا؟ اگر میرا دماغ گھوم گیا تو بالکل اچھا نہیں ہوگا. بدماشی سے تم سب نے میرا راستہ روک لیا. تمہاری جگہ لینے کے لیے کتنی ہی خواتین ہیں باہر، اس کی خبر ہے کیا تمہیں؟ سنبل آغا، ملکہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ملکہ معذرت، ہمیں کئی ماہ سے وظیفہ نہیں مل رہا، اس کا پوچھ رہے ہیں ہم. سنبل آغا، ہمارے پاس ایک اشرفی بھی نہیں ہے ملکہ. کوئی ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا. قطعاً ہم آپ سے گستاخی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو صرف پوچھنا چاہتے ہیں. بس کچھ دن اور صبر کر لیں، آپ کو تمام ادائیگی یکمشت کرتی جائے گی انشاءاللہ. سنبل آغا، تو میرے ساتھ آؤ. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ملکہ. سنبل آغا، اس طرح اور نہیں چلے گا. فوراً میرے پاس مرجان آغا کو بھیجو. آپ کا جو حکم ملکہ. کہاں رہ گیا یہ مرجان آغا؟ خبر دے آئی ہوں ملکہ، لیکن کام کرنا ہی نہیں چاہتا وہ کام چور کہیں کا. اگر آپ چاہیں تو بلا لیتی ہوں ملکہ. ملکہ، کہاں ہو تم مرجان آغا؟ حرم میں ایک شور مچا ہوا ہے اور تم غائب ہو یہاں سے. معذرت چاہتا ہوں، محل کے کاموں میں مصروف تھا. کنیزوں کے وظائف اب تک ادا نہیں کیے گئے ہیں، کیا بتا سکتے ہو کب تک ادائیگی کی جائے گی ان کی؟ میں اس مسئلے کے حوالے سے مصطفیٰ پاشا سے ملا تھا ملکہ، لیکن افسوس کہ ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہو سکا. سفر کے باعث اخراجات میں کچھ پریشانیاں ہیں. یہ پریشانی میں بھی جانتی ہوں مرجان آغا، مگر مجھے اس کا حل چاہیے فوراً. انتظار کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ملکہ. یا پھر اس دفعہ یہ خرچہ اپنے پاس سے نہیں کروں گی میں، اس لیے کہ میرے پاس جو بھی معلومات ہے وہ سارا کا سارا فلاحی ادارے کی تعمیرات کے لیے خرچ ہو رہا ہے. جی ہاں ملکہ، میں جانتا ہوں، لیکن جب تک کوئی اور انتظام نہیں ہو جاتا میرا مشورہ ہے کہ یہودی تاجر سے قرضہ لے لیا جائے. سمجھ گئی، تم جا سکتے ہو. ملکہ، تمہاری کیا رائے ہے سنبل؟ آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں ملکہ، لیکن قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے. انتظار کر لینا بہتر ہوگا ہمارے لیے. سنبل آغا، خواتین کا حال تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح یہاں حرم میں واویلا مچایا ہوا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حرم میں کسی بھی قسم کی بغاوت ہو جائے. دشمن کو موقع فراہم نہیں کرنا چاہتی میں بالکل. کس کی مجال ہے کہ بغاوت کرے ملکہ؟ سب کو خاموش کر دیں گے اللہ کے فضل سے. شہزادی، کئی دنوں کے بعد آنا ہوا آپ کا. میں تمہارے پاس آئی ہوں حرم، کیونکہ میری سماعت تک بعض باتیں پہنچی ہیں. خیریت؟ ایسی کیا بات ہے؟ حرم میں پھیلتی بے چینی کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے محل کے ملازمین میں وظیفہ تقسیم نہیں کیا جا رہا. شہزادی میں حل کر لوں گی، آپ فکر نہ کریں بالکل بھی. سفر کے دوران ہو جاتا ہے ایسا. بتاؤ کتنی ادائیگی ہے؟ میں اپنے اخراجات سے ادا کر دیتی ہوں سب. ضرورت نہیں ہے شہزادی، میں نے کہا نا میں حل کر لوں گی. کیا تم کر لو گی حرم؟ اپنی انا کو بیچ میں مت لاؤ، یہ میرے آقا کا حرم ہے. ان کے وقار کو ٹھیس پہنچے میں یہ نہیں چاہتی. شہزادی آپ تسلی رکھیں، میں سنبھال لوں گی یہ سب کچھ. ٹھیک ہے،
अगर कोई परेशानी हो तो खबर कर देना, मैं मदद कर दूंगी। मलिका, आइए राफेल खातून, खुश आमदीद। शुक्रिया मलिका। माजरत के मैं अपने काम के सबब जेनेवा गई हुई थी। कोई बात नहीं, काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई, कैसी हैं? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ मलिका। सुंबुल आगा ने सूरत हाल बता दी है। आप तो जानती हैं सफरे जंग के दौरान ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। मैं बखूबी जानती हूँ मलिका। बहुत शुक्रिया राफेल खातून। हमें 50,000 अशरफियां चाहिए। सफर के खात्मे पर मुनाफे के साथ वापस कर दूंगी इंशाल्लाह। आपका जो हुक्म मलिका, लेकिन आपकी तलब ज्यादा है, इसे पूरा करने के लिए कुछ दिन की मोहलत दरकार है। लड़कियों, सब यकजा हो जाओ। लड़कियों, तुम सबसे कह रही हूँ। खैर तो है फारिया खातून, क्या हमें वजीफा दोगी? कहाँ ऐसी किस्मत? खामोश रहो खातून। हुरम सुल्तान ने भेजा है मुझे। चंद ही रोज में तुम सबके वजीफे इजाफे के साथ तुम लोगों को अदा कर दिए जाएंगे। अल्लाह हमेशा खुश रखे मलिका को। हुरम सुल्तान ने जो कहा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना, हुरम सुल्तान को हमारा ख्याल है। मलिका, राफेल खातून की तरफ से पैगाम आ गया है मलिका। अशरफियां तैयार हो गई हैं। आला, मैं चाहती हूँ कि तुम फौरन जाओ और अशरफियां लेकर आ जाओ। आप फिक्र न करें मलिका। वही रुक जाओ मलाउन। मेरे अल्लाह, मुझे बचा ले इंसान। न जाने कहाँ रह गया संबल। मैं भी फिक्रमंद हूँ मलिका। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। कहीं उस पर कोई मुसीबत ना आ गई हो फारिहा। कैसी मुसीबत मलिका? मुहाफिज उनके हमरा हैं। जाकर देखो उसे फारिहा, क्या हुआ मालूम करो। आपका जो हुक्म मलिका। हटो सामने से। कयामत, कयामत मलिका, कयामत। वल्लाह मेरी कोई खता नहीं इसमें। एकदम हमला हो गया, अपनी जान मुश्किल से बचा सका हूँ मैं मलिका। क्या कहा? बताओ मुझे आखिर क्या हुआ है? वो डाकुओं ने रास्ता रोक लिया था मलिका। सारी अशरफियां लेकर फरार हो गए वो। इतने मुहाफिज मैंने रवाना किए थे तुम्हारे साथ, ये कैसे हो सकता है कि वो हिफाजत ना कर सके? मलिका, कसम से मेरी कोई गलती नहीं इसमें। लगता है मुखबरी हुई है, उन्हें हमारे वहां से गुजरने का इल्म होगा। वो बहुत सारे आदमी थे, वरना उन आदमी। खामोश हो जाओ तुम लोगों की लापरवाही की वजह से ये हुआ है। इतना बड़ा नुकसान हो गया और मैं कर्जदार भी हो गई। मलिका, फारिहा, मैंने तुमसे क्या कहा था? फौरन मुस्तफा पाशा को यहाँ आने का कहो। शाह सुल्तान आई है मलिका। सोचा उनकी आमद की खबर दे दूं, वो सहन में है।
अल्लाह आपको हमारे सरों पर सलामत रखे। बादब, मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। हुरम, शहजादी, यहाँ क्या हो रहा है? आप क्या कर रही हैं? मुझे भी आगाह किया जाए। क्या लग रहा है हुरम? कनीजों को वजीफे की अदायगी की जा रही है। अफीफा खातून, ऐसा कब से होने लगा कि मुझे बगैर बताए कनीजों में वजीफा तकसीम हो रहा है? मलिका, मैं चाहती थी हुरम, अपने खर्च से दे रही हूँ। जो आपका काम नहीं है उसमें दखल अंदाजी मत करें शहजादी, क्योंकि इस हरम को मैं चला रही हूँ। यही कहते हैं कवानीन और उसूल। कोई भी शख्स, चाहे शहजादी भी क्यों ना हो, किसी को भी हरम का निजाम खराब करने की इजाजत नहीं दे सकती। कनीजों तक एक अशरफी भी नहीं पहुंच रही है और तुम मुझसे निजाम की बात कर रही हो। क्या तुम इस तरह चलाओगी हरम को हुरम? तुर्क खानदान आलिया का ये हाल हो गया है क्या? मुझे आपको वजाहत देने की जरूरत नहीं। अफीफा खातून, जिसे भी अदायगी हुई है उससे वापस ले ली जाए। हर काम करने का एक वक्त होता है और कुछ उसूल होते हैं। इन सब का वजीफा सिर्फ मेरे हुक्म से, मेरी जानिब से दिया जाएगा। ऐसे खड़ी क्या देख रही हो? मलिका ने क्या हुक्म दिया सुना नहीं? जिसने जो भी लिया है वापस करे फौरन। अफीफा खातून, माजरत चाहती हूँ शहजादी, लेकिन हुरम सुल्तान बचा फरमा रही हैं। इनके हुक्म के बगैर कतन वजीफे की अदायगी नहीं की जा सकती। मैं तो ये समझ रही थी कि आपने मलिका को इस बारे में आगाह किया होगा। मैं इन सबको मजबूर और परेशान देखकर मदद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लगता है कि हुरम का बेसबब गुरूर इसमें रुकावट बन गया है। ठीक है, मरजान आगा, अशरफियां जमा करके महल भिजवा दो। और कनीजों, तुम सब दुआ करो हुरम सुल्तान तुम्हारा वजीफा जल्द अज जल्द अदा कर दे। Efendilerinin ellerini öperler. Kabul oluna. मलिका, राफेल खातून, अच्छा हुआ आप आ गई। माजरत मलिका, आपको आगाह किया था कि बहुत से काम है मुझे। आपसे जो अशरफियां मंगवाई थी यहाँ लाते हुए लूट लिया गया उन्हें। खबर तो मिल गई होगी। सुंबुल आगा को समझाया था, मुझे बहुत दुख हुआ। हादसे के दूसरे दिन सुंबुल को आपकी हवेली भेजा था। मालूम हुआ कि आप फिर से जुनेवा गई हुई हैं। काम की वजह से अक्सर जाना पड़ता है मुझे मलिका। और वैसे भी सुंबुल आगा को बताया था मैंने जाने का। क्यों बताया था ना? आपने तो 1 हफ्ते बाद जाने का कहा था राफेल खातून। मैंने देखे पुराने दोस्त हैं, उनका जहाज जा रहा था, मैंने सोचा उनके साथ चली जाऊं। क्यों, क्या हो गया मलिका? अशरफियां जिसने भी लूटी हैं उसे पहले से मालूमात फराहम कर दी गई थी। क्या अपनी हवेली के मुलाजमीन पर पूरा भरोसा है आपको? उनमें से किसी ने हो सकता है मुखबिरी की हो इस बात की। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती हूँ मलिका। वैसे भी मैंने तदबीर के तौर पे आपका नाम खुफिया रखा था। लगता है कि हरम में किसी ने बता दिया होगा। कतन नहीं हो सकता, कोई नहीं जानता था मेरे अलावा। हाय अल्लाह, क्या मालूम शायद आपका किसी ने पीछे किया हो। ऐसा नहीं हो सकता क्या? नामुमकिन।
किस ने किया था ये तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मसला ये नहीं है अभी। राफिल खातून, मुझे दोबारा अशरफियों की जरूरत है, इसलिए कि अब तक कनीज़ों को वजीफा नहीं दिया जा सका है। सबके सब बेहद परेशान हैं, आपको मेरी मदद करनी होगी। अगर आप चाहें तो मैं अपनी जान भी दे दूं मलिका, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे पास अशरफियां नहीं है। पहचानती हूँ राफेल खातून, हर किसी से कर्जा नहीं ले सकती मैं। तो फिर मैं आपको अपनी बहुत ही करीबी दोस्त का मशवरा दे सकती हूँ मलिका। वेनेडिक के खास ताजिरों में से एक हैं और काफी साहिब हैसियत खातून हैं वो। अगर आप चाहें तो आपके लिए उनसे बात कर सकती हूँ मैं। वो जो आपके साथ जेनेवा जाने वाली खातून थी, क्या वो ही? हाँ बिल्कुल वही खातून। उससे बात करो। मैं फौरन उनके पास जाऊंगी, आपको जल्द खबर करती हूँ। मलिका, मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानती हैं, लेकिन वेनेडिक की ताजिर से कर्ज लेना मुनासिब नहीं होगा। मालूम है वेनेडिक के साथ हम बरसरे पैकार हैं। माज़अल्लाह आका को इल्म हो गया तो मारे जाएंगे। आका की आमद से पहले कर्ज उतार दूंगी, और वैसे भी ये बात खुफिया रखनी होगी, किसी को भी मालूम ना होने पाए। मलिका मगर सुम्बुल आका, मैं मजबूर हूँ। जितना जल्द हो सके वजीफे की अदायगी हो जानी चाहिए। शाह सुल्तान इस इंतजार में है कि मेरी कोई गलती उसके हाथ लग जाए, और उसको मैं ये मौका नहीं दे सकती। वो तो ठीक है मलिका, लेकिन आपका कर्ज पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। आका की आमद से पहले कैसे उतारेंगी? एक काम करो सुम्बुल, मेरी सबसे जरखेज जमीनों को फरोख्त कर दो, उस रकम से कर्जा उतारूंगी मैं। मलिका, जैसा आपका हुक्म। वालिदा, आप आका को खबर क्यों नहीं भेज रही? मुझे डर है कि परेशानी बढ़ ना जाए। सफर के दौरान उन्हें ऐसे मसलों में कैसे उलझा सकते हैं, और वैसे भी मैंने एक हल ढूंढ लिया है, जल्द ही ये मसला हल हो जाएगा। मलिका, वहीं रुको खातून, सहन में जाओ फौरन। फारिहा, क्या हुआ है? मलिका, हम कब से आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन फारिया खातून हमें आपके पास नहीं आने देती। मसला क्या है? बास खवातीन कहती फिर रही हैं मलिका कि उनके मुताबिक आपकी खिदमत में होने वाली कनीजों को उनके वजीफे से ज्यादा अशरफियां दी जा चुकी हैं। हमारा गुनाह क्या है मलिका? हमें भी जरूरत है। मलिका, सबकी सूरत हाल एक जैसी है खातून। ऐसी अफवाहों पर एतबार ना करो वरना नुकसान उठाओगी। जाओ सहन में फौरन। माजरत, लेकिन अब हमसे और सब्र नहीं होता। अफीफा खातून, इन खवातीन को फौरन दुर्रे लगाए जाएं, और इसके बाद इन सब को जिंदान में डाल दिया जाए। बगावत करने का नतीजा क्या होता है ये जान लें। हाँ, इतना काफी है। ले जाओ, डाल दो इन्हें जिंदान में। मलिका, मलिका, फारिहा, क्या हो गया? यहाँ क्या हो रहा है अफीफा खातून?
मलिका दरअसल कनीजों में से कनीज सरवी खातून सोते में किसी ने गर्दन काट दी है उसकी। ये खातून जिसे दुर्रे लगवाए थे और जिंदान में बंद करवाया था मलिका, वो खातून है। ये जिसने भी किया है फौरन तलाश करें उसे। वो जो कोई भी है उसे सजा दूंगी अपने हाथों से। लड़कियों, जिसे जो कुछ मालूम है वो सब बता दे। यकीनन तुम सब में से किसी ने देखा होगा कातिल को। कातिल जो कोई भी है मुझे यकीन है इस वक्त हमारे दरमियान है। अफीफा खातून, हुक्म दीजिए मलिका। सुब्बुल और मरजान के साथ मिलकर सबसे पूछगछ करें। अगर सुबह तक असल मुजरिम सामने नहीं आया तो इस सहन की तमाम कनीजों को महल बदर कर दिया जाएगा। सुन लिया तुम सबने कान खोलकर? आज रात कोई नहीं सोएगा। पहले हर तरफ अच्छी तरह तलाशी ली जाएगी। शुरू की जाए तलाशी।